Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 40 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is on games and tournament, which I've taken from previous year Simcats, and the set says in a one-day international cricket match, a team of 11 players against another team of 11 players at any given point of a time. Two-player bat in a partnership and score certain number of runs when one of the two players in a partnership gets out. He is replaced by another player. This is continued till 10 players get out and one player finally remains not out. In addition to the runs scored by the players, there are some extra runs that do not accrue to any player but are counted towards the total score of the team. Following points are known. There were no extra runs accrued to the total score of Team India after Javagal got out. Sanjay scored maximum possible run he could in his partnership and with Nayan and Anil both. Sanjay scored at least one run in all the partnership he was part of. Anil was the last player to get out, and Raju remained not out in the end. Table 1 shows the number of runs scored by each of the 11 players in the order in which they came out to bat, uh, as well as in the table 1 shows the number of runs scored by each of the 11 players in the order in which they came out to bat, as well as the extras accrued to the total score of Team India in one day international cricket match between India and Australia. Table 2 shows the total score of Team India when different player got out, so called fall of wicket, and table 1 and 2 is given. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. How many run did Javagal scored in his partnership? Out of 10 partnership, how many partnership had 0 extra runs? If Sachin had scored exactly 50 when the third wicket fell, what was the contribution of extra runs to the partnership of the 4 wickets? Suppose we define the two number x and y. X के बारे में what is the value of y minus x? Write 239 if your answer is cannot be determined. सो वन ऑफ द आइकॉनिक सेट, मतलब बहुत बढ़िया सेट है ये. और पार्टनरशिप पे अगर जो भी क्रिकेट देखता है दे नो कि यहाँ पे पार्टनरशिप का लॉजिक पूरा पूछा गया है. ठीक है. ऐसा भी है कि अगर आपने क्रिकेट नहीं भी देखा हुआ तो दैट डजंट मीन्स कि यू शुड नॉट ट्राई दिस सेट. एकदम करना चाहिए. इनफैक्ट कमेंट में बताना कि आपको ये सेट पहली बार पढ़ के क्या लगा, वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर दिस सेट और नॉट. मतलब लर्निंग के पर्पज से आपसे तो ये तो बहुत बढ़िया सेट है. हाँ, शायद एग्जाम वाले फेज में मैं नहीं करना चाहूंगा इफ आई डोंट नो द बैकग्राउंड, इफ आई एम नेवर सॉल्व दीस टाइप ऑफ सेट. ठीक है. सो एक पार्टनरशिप का सेट है जहाँ पे टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में बताया गया है. अपने को दो टेबल दिया गया. पहला टेबल ये बता रहा है कि प्लेइंग 11 ने कितना स्कोर किया है, उसके अलावा एक्स्ट्रास का बताओ. टोटल 238 उन्होंने स्कोर करा है. एंड फॉल ऑफ विकेट बताया, यानी कि फर्स्ट विकेट 7 रन पे गिरा था, सेकंड 7 पे गिरा था, थर्ड 70 पे, एंड सो ऑन करके गिरा हुआ. ठीक है. अपने को पूछा हुआ है कि अनिल ने कब कितना स्कोर करा, 10 पार्टनरशिप में से कितने में 0 उन्होंने, ऐसा. सो फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट अ टेबल जहां पे अपने को, मैंने क्या करा, कुछ ऐसा एक टेबल बना लिया है. ठीक है. अब ऐसा टेबल है जहां पे मेरे को विकेट्स, रन, फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर, बेसिकली मैं ये देखने वाला हूँ कि कौन से दो लोग हैं जो कि बैटिंग कर रहे होंगे. मैं इसको स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक वाला नहीं रख रहा हूँ बिकॉज वो एक नहीं पता है. हो सकता है कि नॉन स्ट्राइकर वाला रन आउट हो रहा हो, बिकॉज यहाँ पे आउट का लॉजिक नहीं दिया कि कैच आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, तो वो चीज नहीं रखते. आई केप्ट इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेयर एज इन जो दो प्लेयर वहां पे पिच पे अवेलेबल है. पार्टनरशिप वो कितने स्कोर की पार्टनरशिप करें, एंड एक्स्ट्रास, तो मैं एक्स्ट्रास भी निकाल दूंगा बिकॉज ये एक एलिमेंट है जो कि अपने को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. पार्टनरशिप कैसे निकलेगी, इनको यूज करके. ठीक है. चलो, विकेट कहाँ पे थे, पहले से लेके 10 विकेट तक गिन लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है. कितने रन पे उनका विकेट गिरा, 7 7 70 143. ठीक है. 147 201 205 224 227 एंड 238. 238 पे यहाँ पे 10th विकेट गिरा था. ठीक है. अभी अपने को पता है पार्टनरशिप क्या कितने होने वाली. पहले विकेट के लिए यदि पार्टनरशिप हैज टू बी 7 रन की, दूसरे विकेट के लिए 0 रन की, बिकॉज दोनों विकेट 7 पे गिरे हुए, तो ये होना चाहिए. तीसरे के लिए 63 रन की पार्टनरशिप होगी. बेसिकली इनको ये क्यूमुलेटिव स्कोर है और वो वही माइनस करे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है. फोर्थ विकेट के लिए पार्टनरशिप कितनी होने वाली है, 73 रन की. इसके लिए कितनी होने वाली है, 4 रन की. ठीक है. दिस इज 4. यहाँ पे कितनी होने वाली है दोस्तों, 147 और 3 और 4 और 51, यानी कि 54 रन की पार्टनरशिप. यहाँ पे कितनी होने वाली है, 4 रन की पार्टनरशिप. यहाँ पे कितनी होने वाली है, 19 रन की पार्टनरशिप.
यहाँ पे 3 रन की पार्टनरशिप, यहाँ पे 11 रन की पार्टनरशिप। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले तो निकाल लिया कि भाई कितने रन की पार्टनरशिप होने वाली उन विकेट्स के लिए। अभी मेरे को एक्स्ट्रास तो पता ही नहीं है कि एक्स्ट्रास कौन है। ठीक है, टेबल नंबर जो 1 दिया हुआ था, अगर पीछे जाओ तो यहाँ पे क्या लिखा था, टेबल नंबर 1 shows the number of runs scored by each of the 11 player in the order in which they came out। इसी ऑर्डर में वो निकल के आए खेलने के लिए, मतलब पहला जो इनिंग ओपन की होगी अजय और सचिन ने ओपन करी है। ठीक है, यानी कि पहले कौन आ रहा है, अजय और सचिन। ठीक है, अब किसने कितना स्कोर करा नहीं पता। ठीक है, अब क्योंकि सचिन ने 90 करा तो ऑब्वियसली 90 करने का रीजन है कि भाई सचिन यहाँ पे आउट नहीं होगा। आउट कौन होगा, अजय आउट होगा। ठीक है, और कितने रन बना के आउट हुआ, 1 रन बना के आउट हो गया। ठीक, मैं क्रॉस का यहाँ पे साइन यूज करूंगा फॉर पीपल, मतलब इस पार्टनरशिप में कौन आउट हुआ उस चीज को इंडिकेट करने के लिए। सचिन का स्कोर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहा बिकॉज ये जो 7 रन है, हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्राज रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि ये पूरे 6 रन सचिन ने बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं पेपर मतलब जब मैं पैसेज पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि जब जवागल आउट होता है उसके बाद से एक्स्ट्राज नहीं है, यानी कि जवागल जब तक मेरे को नहीं मिल रहा तब तक तो सब आउट वाला करना है। और इसके अलावा मेरे को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वहां पे संजय को लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि संजय है जो कि अपनी पार्टनरशिप नयन और अनिल के साथ करते हैं। संजय है जो कि अपनी पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा स्कोर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं नयन और अनिल के साथ। इनफैक्ट संजय ने एटलीस्ट 1 रन स्कोर किए हैं किसी भी पार्टनरशिप में, और अनिल वॉज द लास्ट प्लेयर हु गॉट आउट एंड राजू रिमेन नॉट आउट। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई अनिल वॉज द लास्ट प्लेयर टू गेट आउट, अनिल को यहाँ दे देते और वो आउट भी हुआ था, और राजू था जो कि रह गया होगा। राजू रहा होगा, राजू ने कितने स्कोर करे, राजू ने 3 स्कोर करे। ठीक है, यानी कि इस 11 में यहाँ पे 8 स्कोर करने वाला होगा अनिल। ठीक है, ये क्लियर है क्योंकि यहाँ पे देखो जवागल यहाँ पे नहीं आता, जवागल यही बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने को क्लियर मिल सकता है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए तो ये 8 और 3 का डिस्ट्रीब्यूशन इनको यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बाकी पे, करते हैं बाकी पे, मतलब एक एक स्टेप लेके आते हैं। अपने को यहाँ पता था कि सचिन तो आउट हुआ नहीं है तो सचिन वुड कंटिन्यू। ठीक है, सचिन वुड कंटिन्यू, और जो दूसरा बंदा आया वो कितने, कौन आएगा, अजय आ गया जो कि आउट हो गया, सचिन अभी भी खेल ले। दूसरा बंदा कौन आएगा, विनोद आएगा, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप कितनी हुई है, 0 रन की, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रास भी 0 रहे होंगे। तो यहाँ पे विनोद का स्कोर तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये तो 0 ही बना के आउट हो गया होगा। ठीक है, यानी कि ये आउट हो गया। ठीक है, तो विनोद के लिए भी निकल गया। अब कौन आया होगा, अजहर आया होगा, और सचिन एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, और यहाँ पे कौन आ रहा है, अजहर। अजहर का स्कोर कितना है, अजहर का स्कोर है 10, और पार्टनरशिप कितनी हुई है 63 की, यानी कि फिर से ये पता चला कि अजहर ही है जो आउट हुए होंगे। एंड सचिन वुड हैव कंटिन्यूड बिकॉज समझो ना, 63 रन की पार्टनरशिप ही हुई है और अजहर ने 10 ही रन बनाए, तो ऑब्वियसली अजहर ही आउट हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि अजहर मतलब सचिन का अभी 90 रन भी आना बाकी, तो अभी तो पूरे सचिन का 90 जो रन आना बाकी, अभी तो पूरे 90 रन भी नहीं बने। ऑब्वियसली सचिन अभी खेल रहे होंगे तभी वो आगे जाके 90 पूरे बने होंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट अभी सचिन अभी भी खेल रहे हैं। ठीक, अब कौन आया, सचिन के बाद अजहर आगे गया। अब आ गए संजय, संजय ने कितना स्कोर करा, 62 करा है। ठीक है, 62 में से हो सकता है कि यार कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पे किया, कुछ यहाँ किया, कुछ एक्स्ट्रा बने हो, मतलब 62 में से अभी तो संजय का नहीं पता। हो सकता है संजय ने 62 पूरा किया हो और बचा हुआ जो 8 या 9 रन है, सॉरी 11 रन है, वो सचिन ने किया हो, ये तो पता नहीं है। पर अपने को एक चीज क्या पता थी, अगर पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो, सचिन स्कोर्ड मैक्सिमम, सॉरी संजय स्कोर्ड मैक्सिमम पॉसिबल रन ही कुड हैव स्कोर्ड हिज पार्टनरशिप विद नयन एंड अनिल। यानी कि संजय की जो पार्टनरशिप है वो नयन और अनिल के साथ होने वाली, यानी कि संजय अभी आगे कंटिन्यू करेगा। यानी कि यहाँ पे कौन आउट हुआ है, यहाँ पे सचिन आउट हुआ है, तो संजय को कंटिन्यू कराते हैं। ठीक, संजय अगर आउट हुआ है तो कौन आया होगा, यहाँ पे मनोज आया होगा, और मनोज अपना यहाँ पे 3 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये मनोज जो 3 रन बना रहा है, यहाँ पे तो 4 रन है, क्योंकि एक पॉइंट आगे लिखा हुआ था कि संजय स्कोर्ड एटलीस्ट 1 रन इन ऑल दी पार्टनरशिप, पॉइंट नंबर थ्री में लिखा हुआ था कि संजय ने कम से कम 1 रन तो बनाया ही बनाया, यानी कि यहाँ पे संजय ने 1 रन बनाया होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रास कितने रहे होंगे, 0। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया सेट है। अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, कुछ भी नहीं करना है, अरेंजमेंट बस करते जाना और चीजों को रखते जाना, और नंबर्स बस खाली जो क्यूमुलेटिव स्कोर वाले उसको सेट करना था, और कुछ भी नहीं करना था। अगर बेसिक क्रिकेट का आइडिया नहीं भी है तब भी ये सेट तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। संजय तो अभी भी कंटिन्यू करेगा बिकॉज वो अनिल के साथ और इसके साथ पार्टनरशिप करता है। ठीक है, तो संजय की, अब मनोज के बाद कौन आ रहा है, यहाँ पे मनोज के बाद नयन आएंगे। ठीक है, जोगी कितना बनाएंगे, 27 बनाएंगे। ठीक, अभी संजय और आगे जाएंगे बिकॉज संजय कहाँ तक जाना है, अनिल तक जाना है अपने को, संजय को। ठीक है, तो संजय अभी और आगे आएंगे।
और यहाँ पे अनिल को आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बने, संजय और अनिल के यहाँ पे पार्टनरशिप में 4 रन बने। अब अगर ध्यान दो ना, अनिल के यार 17 रन है, समझ रहे हो, अनिल के अगर 17 रन है और यहाँ पे मैं अनिल को आउट नहीं कर सकता, अगर अनिल को आउट करूंगा तो यार 4 रन की पार्टनरशिप में उसका रन ही कहाँ से पूरा होगा। यानी कि अब यहाँ पे कौन आउट हुआ है, यहाँ पे संजय आउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मनोज आउट हुआ था और यहाँ पे नयन आउट हुए थे, यहाँ पे कौन आउट हुआ है, संजय आउट हुआ है। अच्छा, अनिल क्योंकि कंटिन्यू करने वाला मेरे को साफ साफ दिख रहा है, तो मेरे को पता है यहाँ से हम संजय को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को पहले लिख लिया था ताकि ये चीज अपने पास साफ साफ रहे। ठीक है, यानी कि अब ऐसा है कि अनिल लास्ट तक रहने वाले, अब यानी कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आएंगे और आउट होते जाएंगे। बाकी प्लेयर कौन है, जावगल है। ठीक है, जावगल ने कितने स्कोर करे, 7 स्कोर करा। ठीक है, यानी कि अनिल ने शायद 12 स्कोर किया हो। बट अब आगे कौन आएगा, वेंकटेश आएगा। वेंकटेश, वेंकटेश ने कितना स्कोर किया, 0 स्कोर किया। ठीक है, लेकिन अपने को क्या पता था, जावगल जब आउट होता है उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्राज नहीं पड़े, यानी कि यहाँ पे 0 एक्स्ट्राज आए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 एक्स्ट्राज आए हैं तो यहाँ पे ये जो 3 रन है जिसमें से वेंकटेश ने 3 रन मारे, तो अनिल ने मारे होंगे यहाँ पे बाकी रन। यहाँ पे कितने रन आ रहे होंगे, अनिल ने 3 रन मारे होंगे। ठीक है, हमने ये भी भर लिया। अब क्या करा जाए, अब अगर ध्यान दो तो अपने को राजू भी फिक्स हो गया, वेंकटेश भी फिक्स हो गया, जावगल फिक्स हो गया, अनिल को भी फिक्स कर लिया, विनोद सचिन सबको हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, इतना आसान था ये सेट। अब इसके थोड़ा सा हम और भी देख ले कि क्या हम कुछ और है जो कर सकते हैं, बिकॉज अपने को पॉइंट दिया हुआ था, वो पॉइंट का यूज करते देखते कुछ ऐसा है जो और हम भर सकते हैं। देवर नो एक्स्ट्रा रन एक्यूर्ड टू द रन आफ्टर जावगल गॉट आउट। ठीक है जी, हमने ये कर लिया। तो क्या मैं यहाँ पे 19 में से अनिल का रन बता सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर की, क्योंकि है ना 7 रन है, 12 रन में से कितना अनिल कंट्रीब्यूट करा, नहीं करा, बिकॉज अनिल का टोटल स्कोर वो 17, जिसमें से 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी कि 11 तो यहीं पे आ रखे हैं। ठीक है, 11 में से अब जो बचा हुआ 6 है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, संजय स्कोर्ड मैक्सिमम रन ही कुड हैव स्कोर्ड इन हिज पार्टनरशिप विद अनिल एंड नयन बोथ। संजय ने क्या करा ना, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, ज्यादा से ज्यादा रन मतलब जो उनकी पार्टनरशिप हुई होगी जितना मैक्सिमम पॉसिबल रन है अपने को संजय को एलिमिनेट करना पड़ेगा। संजय की पार्टनरशिप कहाँ कहाँ पे है, संजय की पार्टनरशिप है 54 की नयन के साथ, बिकॉज अपने को इन दोनों पे चेक करना है। संजय स्कोर्ड मैक्सिमम पॉसिबल रन ही कुड हैव स्कोर्ड इन अ पार्टनरशिप विद नयन एंड अनिल बोथ। नयन वाले केस में 54 रन की पार्टनरशिप थी जिसमें से 27 इन्होंने बनाया, तो 27 इन्होंने बनाया होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या आ सकता है, संजय का, क्योंकि मेरे को अनिल का स्कोर ही नहीं पता, तो अनिल को आई कुड गिव 0 एंड संजय को हम 4 दे सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो, तो अनिल को हमने दे दिया, सॉरी संजय को दे दिया 4 और अनिल को दे दिया हमने यहाँ पे 0, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है संजय के लिए। अब ये आपके दिमाग में आ सकता है, सर नयन में आपने क्यों नहीं करा, बिकॉज नयन का अपने को स्कोर दिया हुआ है ना कि वो 27 रन बना रहा है और इसी पार्टनरशिप में आउट हुआ है, तो मैं इसको ज्यादा खींच नहीं सकता। इस 54 की पार्टनरशिप में मेरे को पता है कि नयन का स्कोर 27 आएगा ही आएगा, यानी कि संजय का 27 देना ही पड़ेगा। बट इस वाले केस में मेरे को अनिल का स्कोर ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने क्या करा, संजय को मैक्सिमाइज करने के लिए पूरे नंबर मतलब पूरे मार्क्स संजय को दे दिए। ठीक है, पूरे रन। ठीक, संजय का बाकी स्कोर कितना था, संजय का जो टोटल स्कोर है दैट वाज 62। 62 में से 4 रन यहाँ पे, 27 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि 27 प्लस 4 इज 27 प्लस 4 इज 31, 31 प्लस 1 इज 32, यानी कि जो बचा हुआ 30 नंबर है मतलब 30 रन है इसने यहाँ पे करा होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप कितनी हुई है, 73 रन की। 73 रन में से 30 रन संजय कंट्रीब्यूट करा, हो सकता है 43 रन सचिन कंट्रीब्यूट करे, या हो सकता है सचिन ने केवल 40 रन कंट्रीब्यूट किया और 3 रन जो है पार्टनरशिप से आए, ये तो हम अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा और कुछ बता सकते हैं, यहाँ पे सचिन के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, यहाँ पे नहीं बोला जा सकता, यहाँ पे भी नहीं बोला जा सकता, यहाँ पे भी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, संजय के लिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अनिल के लिए क्या था यार, अनिल का देखो 1 2 3 4, ये 4 जगह पे अनिल के लिए, अनिल का टोटल स्कोर कितना है, अनिल का टोटल स्कोर was 17, सो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0, तो यानी कि यहाँ पे इसने 6 स्कोर करा होगा अनिल ने। ठीक है, सो बेसिकली अनिल का यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, अब क्या करा जाए, कुछ और किया जा सकता है अपने को। अजय का एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, अजय सचिन में कुछ नहीं ऐड हो सकता, विनोद सचिन में कुछ नहीं ऐड हो सकता, अजर सचिन में नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। सचिन के बारे में ये पता है कि इस चारों जगह पे सचिन का जो स्कोर का सम है दैट इज 90, बस इतना पता है, और कुछ हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है क्योंकि इनकी पार्टनरशिप ही 0 रन की थी, तो यहाँ पे एक 0 बना सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे ना एक्स्ट्रास का नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं सेट पे, देखते हैं सेट में ऐसा क्या पूछा हुआ है, सेट पे देखते हैं उससे शायद कुछ हेल्प मिल पाए, बिकॉज इफ का लॉजिक पूछा हुआ तो मतलब चांसेस आर वेरी हाई दैट वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा जिसकी वजह से आई विल बी एबल टू फिक्स द वैल्यू ऑफ सचिन आल्सो, यहाँ एक्स्ट्राज भी निकल जाएंगे। हाउ मेनी रन डिड
अनिल स्कोर इन इस पार्टनरशिप विद जवागल, जवागल के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है 8 विकेट में, जहाँ पे इन्होंने 6 रन स्कोर करे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, आउट ऑफ द 10 पार्टनरशिप हाउ मेनी पार्टनरशिप हैड 0 एक्स्ट्रा रन्स? यार 0 एक्स्ट्रा रन्स का ना आंसर क्या होना चाहिए? सीबीडी। अब सीबीडी क्यों होना चाहिए? मेनी ऑफ यू में से कि सर 1 2 3 4 दिख तो रहा है, 4 क्यों नहीं मार्क कर रहे हो? यार देखो समझो ना, यहाँ पे अपने को ये नहीं पता कि इन दोनों में से पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा पढ़े कि नहीं पढ़े, या यहाँ पे पार्टनरशिप में पढ़े कि नहीं पढ़े। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि यार सचिन और इस वाले में 6 रन यहाँ पे पड़ गए हो और बाकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हुई हो, या यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा पड़ गया हो, या इन दोनों में एक्स्ट्रा पड़ गया और सचिन ने पूरा जो 90 रन वाली जो इनिंग है वो, चलो यहाँ पे नहीं बट इन दोनों का स्कोर मिला के भी तो करा जा सकता है। तो यार थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहने वाला है, और यहाँ पे भी अगर ध्यान दो तो इन तीनों जगह पे भी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर 90 देखूँ ना तो यहाँ पे कितना बन सकता है? यहाँ पे 6 रन बन सकते हैं, यहाँ पे 53 बन सकता है एंड यहाँ पे 43 बन सकता है। तो 43 एंड 46 49 49 और 53, तो यार 90 से तो ज्यादा ही आ गया ना, 93 94 रन का बन रहा है यानी यहाँ पे। तो यार एक्स्ट्रास का कुछ ना कुछ लोचा पड़ रहा है, वो कहाँ पे एडजस्ट करा जाए नहीं पता। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? सीबीडी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ सचिन सचिन हैड स्कोर्ड एग्जैक्टली 50 रन व्हेन द थर्ड विकेट फॉल। तीसरे विकेट गिरने पे सचिन के 50 रन स्कोर हुए थे एग्जैक्टली। ठीक है, इफ द सचिन हैड स्कोर एग्जैक्टली 50 रन, यहाँ पे नहीं लिखते बिकॉज यहाँ पे तो पार्टनरशिप को मेंशन कर रहे हैं। कह रहा है कि सचिन के 50 रन थे जब थर्ड विकेट गिरा था। ठीक है, फिर आगे पूछा हुआ है कि सचिन हैड extras 50 when the third wicket fell, what was the contribution of extra run to the partnership for fourth wicket? ठीक है, अगर 50 रन यहाँ तक बने थे सचिन के, तो सचिन ने टोटल रन बनाए 90, यानी कि सचिन ने यहाँ पे बचे हुए 40 रन यहीं पे बनाए होंगे, यानी कि 30 और 40 कितना होता है? 70, यानी कि एक्स्ट्रा कितने रहे होंगे? 3 का, यानी आंसर क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, ये तो आसान सा था बट बिकॉज टेबल भर रखा था तो एकदम आसानी से दिख गया। फिर से पढ़ देता हूँ, सचिन का थर्ड विकेट गिरने तक 50 रन बने थे, तो यानी कि जो बचा हुआ 40 रन उसने यहीं पे बनाया होगा फोर्थ विकेट की पार्टनरशिप में, यानी कि इसमें से संजय का स्कोर हमें पता था 40 यहाँ पे आ गया और पार्टनरशिप 73 रन की थी, तो द एक्स्ट्रा हैज टू बी 3 रन का। ठीक, सपोज वी डिफाइन टू नंबर्स x and y as follows, x is equal to the total score of team India when Sanjay came to bat after the fall of the previous wicket। अच्छा जी, संजय केम टू बैट आफ्टर द फॉल ऑफ प्रीवियस विकेट। संजय कब आए बैटिंग करने के लिए? संजय फोर्थ विकेट पे आए, यानी कि तीसरा विकेट गिरा है 70 रन पे, यानी कि एक्स की वैल्यू को कह रहा है 70 मान लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू द टोटल स्कोर ऑफ टीम इंडिया व्हेन संजय गॉट आउट। संजय आउट कब हुए? संजय आउट हुए हैं 7th विकेट पे, यानी कि 205 रन पे आउट हुए हैं, यानी कि 205 रन की वैल्यू है। दिस इज y। पूछा क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस x? अरे ये तो एकदम इजी है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा 130। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। बढ़िया सेट था यार, तुम्हें मतलब ट्राई करना चाहिए लर्निंग के लिए, तो कर लो। यू डोंट नो कि अगर आ गया तो मतलब ऐसा है, तो डू ट्राई। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।